Good morning, student. I'm Karan. I'm your English teacher. I will teach you English. The name of your English book is English Reader, Section A, Prose, and name of this book is Honeycomb. And the first chapter is 3 questions. Now we will start to read this chapter. A king has 3 questions and he is seeking answer to them. What are 3 questions? Does the king get what he wants? एक राजा के सामने 3 प्रश्न है और वह इनके उत्तर जानना चाहता है। प्रश्न क्या है? क्या राजा उनके उत्तर जान पाता है? The thought come to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. These 3 things were: what is the right time to begin something, which people should he listen to, what is the most important thing for him to do. किसी राजा के मन में विचार आया कि यदि उसे 3 बातों का पता चल जाए तो वह कभी असफल नहीं होगा। ये 3 बातें थी: किसी काम को आरंभ करने का उचित समय क्या है, उसे किन लोगों की ओर ध्यान देना चाहिए, वह सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है जिसे वह करे। The king therefore sent messenger throughout his kingdom promising a large number of money to anyone who would answer these 3 questions. Meaning of messenger is doot. I'm repeating again. Meaning of messenger is doot and the meaning of kingdom is samarajya. Now I'll translate this paragraph into Hindi. इसलिए राजा ने अपने पूरे राज्य में इस वचन के साथ दूत भेजे कि जो कोई इन 3 प्रश्न के उत्तर देगा उसे बहुत बड़ी धनराशि दी जाएगी। Many wise men come to the king, but they all answer his question differently. बहुत से बुद्धिमान, वाइज मैन क्या होता है? बुद्धिमान व्यक्ति राजा के पास आए, परंतु उन सब ने उसके प्रश्नों के भिन्न-भिन्न उत्तर दिए। In reply to the first question, some said that king must prepare a timetable and then follow it strictly. Only in this way, they said, could he do everything at its proper time. Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. The king should not notice all that was going on, avoid foolish pleasure. Meaning of prepare is तैयार करना, impossible असंभव, pleasure means खुशी और foolish मूर्ख. Now next is and. And always do whatever seemed necessary at that time. Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time. This was because one man would find it impossible to decide correctly without help from others the right time for every action. सीम्ड होता है दिखाई देना, नेसेसरी जरूरी, काउंसिल सभा या समिति। अब मैं इसको ट्रांसलेट करता हूं। पहले प्रश्न के उत्तर में कुछ ने कहा कि राजा को समय सारणी बना लेनी चाहिए और फिर उसका दृढ़ता से पालन करना चाहिए। उनका कहना था कि केवल इसी प्रकार ही राजा हर काम उचित समय में कर लेगा। दूसरों ने कहा कि किसी कार्य को करने के लिए
पहले से ठीक समय निश्चित कर पाना असंभव है। जो कुछ हो रहा है उस पर राजा को नजर रखनी चाहिए। क्या रखनी चाहिए? नजर रखनी चाहिए। उसमें ठीक प्रतीत हो, जो उसमें क्या हो? ठीक प्रतीत हो। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग। हाँ, प्रतीत हो। और कुछ अन्य ने कहा कि राजा को बुद्धिमान लोगों की समिति की क्या है? जरूरत है। कुछ लोगों ने कहा कि राजा को कुछ बुद्धिमान लोगों की समिति की जरूरत है, जो उसे ठीक समय पर कार्य करने में सहायता करे। इसलिए आवश्यक था, क्योंकि दूसरों की सहायता के बिना अकेले आदमी के लिए प्रत्येक कार्य उचित समय निश्चित करना असंभव क्या है? था। बट द अदर said that there were some things which could be urgent. These things could not wait for decision of the council. In the order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future, and only magician could do that. The king therefore would have to go to the magician. अर्जेंट होता है बहुत जरूरी, और मीनिंग ऑफ अर्जेंट इज बहुत जरूरी, और मैजिशियन होता है जादूगर। क्या होता है? जादूगर। तो अब परंतु तभी दूसरे लोगों ने कहा कि कुछ मामलों पर तुरंत निर्णय लेने की जरूरत नहीं है। इन कार्यों के लिए समिति के निर्णय की प्रतीक्षा नहीं की जा सकती। अतः कोई कार्य करने का ठीक समय निश्चित करने के लिए भविष्य की जानकारी आवश्यक है, और केवल जादूगर ही ऐसा काम कर सकते हैं। इसलिए राजा को जादूगरों की क्या लेनी चाहिए? राय लेनी चाहिए। अगला शुरू करते हैं। इन देयर आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, सम सेड दैट द पीपल मस्ट necessary to the king fear the counselor. Others said the priest, a few other choose a doctor, and yet others said that his soldiers were the most necessary. इसमें वर्ड मीनिंग काउंसिलर, मेंबर ऑफ काउंसिल, सभा के सदस्य। प्राइस्ट मीन्स पुरोहित। तो अब मैं इसको ट्रांसलेट करता हूं। दूसरे प्रश्न के उत्तर में कुछ ने कहा कि राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति उसके दरबारी हैं। दूसरों ने कहा पुरोहित है। कुछ अन्य ने डॉक्टरों को चुना, और कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि राजा के सैनिक सबसे क्या है? महत्वपूर्ण है। To the third question, some said science, others choose fighting, and yet other religious worship. तीसरे प्रश्न के उत्तर में कुछ ने कहा विज्ञान, अन्य ने कहा युद्ध करना, कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने कहा पूजा पाठ करना। As the answer to his question were so different, the king was not satisfied and gave no reward. Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. अब इसमें वर्ड मीनिंग आता है सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड होता है संतुष्ट। क्या होता है? संतुष्ट। और रिवार्ड होता है इनाम। हर्मिट हो गया तपस्वी। विजडम क्या होता है? बुद्धिमता। तो अब इसका करते हैं हम। क्योंकि राजा के प्रश्न के उत्तर अत्यधिक भिन्न थे, इसलिए राजा संतुष्ट न हुआ। राजा के प्रश्नों के उत्तर क्या थे? अत्यधिक भिन्न थे, इसलिए राजा संतुष्ट न हुआ, और उसने किसी को भी पुरस्कार नहीं दिया। इसके बजाय राजा ने एक तपस्वी की सलाह लेने का निश्चय किया, जो अपनी बुद्धिमता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। समझ गए? अब अगला, द हर्मिट लिव्ड इन अ बुट which he never left. He saw no one but simple people, and so the king put on ordinary clothes. Before he reached the hermit hut, the king left his horse with his bodyguard and went
ऑन अलोन। अब ऑर्डिनरी होता है साधारण, बॉडीगार्ड हो गया अंगरक्षक, और यहाँ वुड का मीनिंग लिया हुआ है जंगल। वुड लकड़ी होती है तो ऑब्वियसली लकड़ी जो है जंगल से मिलती है, तो वुड का मीनिंग यहाँ जंगल से लिया गया है। तो मैं ट्रांसलेट करता हूँ। तपस्वी जंगल में रहता था, जहां से वह कभी बाहर नहीं निकलता था, वह केवल साधारण लोगों से ही मिलता था। इसलिए राजा ने साधारण वस्त्र पहने पहने उसने। तपस्वी की झोंपड़ी में पहुंचने से पहले राजा ने अपना घोड़ा अपने अंगरक्षक के पास छोड़ दिया और अकेले आगे बढ़ा। As the king came near the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. He greeted the king and continued digging. The hermit was old and weak, and as he worked, he breathed heavily. As the king come near to the hermit hut, जैसे ही राजा क्या हुआ, जैसे ही राजा तपस्वी की झोंपड़ी के पास पहुंचा, उसने तपस्वी को अपनी झोंपड़ी के सामने क्या देखा, उसने किसको, जमीन खोदते हुए देखा। ग्रीट का मतलब, अब ही ग्रीटेड, ग्रीट मीन्स अभिवादन करना। ही ग्रीटेड द किंग, उसने राजा का अभिवादन किया। ही ग्रीटेड द किंग, उसने किसको अभिवादन किया। जब राजा झोंपड़ी के पास पहुंचा, उसने तपस्वी को अपनी झोंपड़ी के सामने खोदते हुए, उसने राजा को, किसने, हर्मिट ने राजा को क्या किया, उसका अभिवादन किया, ग्रीट किया, एंड कंटिन्यू डिगिंग, और खोदना शुरू रखा। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, जो तपस्वी थे वो क्या थे, बूढ़े और कमजोर थे। एंड ही इज वर्क, एंड एज ही वर्क, और जैसे कि वो कार्य कर रहा था, ही ब्रीथ हैविली, वह जोर जोर से हाँप रहा था। तो ब्रीथ हैविली, जोर जोर से हाँपना, ग्रीट अभिवादन, डिगिंग खोदना। तो आज का लेक्चर इतना ही। आप जो वर्ड मीनिंग, आपका जो होमवर्क रहेगा, जो रिटन वर्क रहेगा, वो रहेगा वर्ड मीनिंग, जो मैंने आपको लिखवाए यहाँ पर बताया उनको वर्ड मीनिंग। यू हैव टू राइट ऑल दोज, एंड योर लर्निंग वर्क इज द ट्रांसलेशन ऑफ दिस चैप्टर, जहां तक मैंने आपको करवाया हुआ है। थैंक यू सो मच।